Good morning student and welcome back. Now today we'll do question number 3. Just remember, now in this question I will not explain you in detail like I have explained in last video. What we'll do a calculation of 1, 2 or 3 point, and then later on I will straight away write all the answers. आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, पूरे कॉलमन का कैलकुलेशन एक बार खुद से कर लो एंड देन चेक योर आंसर. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. द क्वेश्चन इज securities A, B, C, D, E, F. So there are 6 securities given. Return of individual securities are also given. The beta of securities and EI square. EI square is also known as unsystematic risk or residual variance of the securities. Information is given. Paragraph construction. There is some instruction given in paragraph. Construct optimum portfolio and suggest what amount to be invested in each securities. Market variance is 10% while risk-less rate of return is 5%. If this type of question is given, then it will be surely of Sharpe's portfolio optimization, whether it is given or not. We have to consider it as in Sharpe's portfolio optimization. Further, 2 more information is given in paragraph. Market variance, that is sigma square m 10%, and risk-less rate of return. Risk-less rate of return is also considered as risk-free return. So risk-free return is 5%. So as usual, we will do this sum in 2 steps. We'll have to prepare 2 tables. Table number 1, उसके अंदर 6 कॉलम्स आएंगे. 6 कॉलम्स के अंदर पहले 4 कॉलम्स सेम ही रहेंगे जो सम के अंदर दिए हैं. वी विल कॉपी फ्रॉम अबव. As well as remember, we have to write this thing with pencil so that later on you can rough it. यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है. This we are writing for our reference so that we will not get confused while calculating. So RF is 5% and sigma square m 10%. Now next, first column, what we have to now do, first step is RI minus RF, that is excess return we have to calculate. RI ये कॉलमन रहा, RF 5, so we have to deduct 5 from each of these securities. 15 minus 5 10, 12 minus 5 7, 11 minus 5 6, 8 minus 5 3, 9 minus 5 4, and 14 minus 5 9. RI minus RF. Next we have to calculate excess return to beta ratio, that is RI minus RF to beta ratio divided by beta. This column will be divided by beta. Remember, here we haven't been provided with any instruction that what percentage, what decimal points we need to consider. हमें कोई नहीं बोला गया है. जब कभी भी हमें कुछ ना बोला जाए तो हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं और ये सम करके हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि 4 डिजिट्स लेने का इम्पोर्टेंस क्या है. सो रिमेंबर, जब कुछ ना बोला गया हो तो 4 डिजिट ही लेना. प्लीज डू नॉट मेक मिस्टेक. रिमेंबर, सो RI माइनस RF डिवाइड बाई बीटा I, दैट इज 10 डिवाइड बाई 1. तो 10 ही आएगा. लाइक वी कैन डू 10 divided by 1, so answer will be 10. Then 7 divided by 1.5, 7 divided by 1.5, so we'll get answer like 4.66666. तो हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं एंड 7, तो हमारे आंसर आएगा 4.6667. उसके बाद वाले सारे डिजिट्स वी विल रिमूव. देन 6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 3. 3 डिवाइड बाई 0.8, 3 डिवाइड बाई 0.8, 3.75. जहाँ पे 2 या 3 डिजिट आए तो पूरे के पूरे ही हमें लिखने हैं जितना आंसर आया हो. 4 डिवाइड बाई 1 4, 9 डिवाइड बाई 1.5 6. ये हमारा स्टेज नंबर 2 हो गया. RI माइनस RF डिवाइड बाई बीटा I, दैट इज एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो.
अब हमें ये सिक्योरिटीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उनको रैंकिंग देना है। रैंकिंग देने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सेस रिटर्न टू बीटा रेशियो जिसका हो उसको सिक्योरिटी 1 कहा जाएगा। सो दिस विल बी 1, देन दिस विल बी 2, 3, 4, 5 and 6. This security will be arranged now in this order. अब पहला टेबल का काम हो गया। सेकंड टेबल हमें क्यों बनाना है? टू कैलकुलेट एंड एस्टैब्लिश कट ऑफ रेट। ये बनाने के लिए हमें 7 कॉलम्स का टेबल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कॉलम का नाम आएगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज के अंदर जितनी सिक्योरिटीज है लिखनी है, लेकिन हमें अब ऑर्डर में लिखनी पड़ेगी जो रैंकिंग दिया है। सबसे पहला रैंक है सिक्योरिटी ए का, तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद सिक्योरिटी एफ, फिर उसके बाद सिक्योरिटी बी, फिर उसके बाद सिक्योरिटी ई, फिर उसके बाद सिक्योरिटी डी एंड देन सी। अब हमें सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए इसी ऑर्डर में लेनी है। रिमेंबर, यहाँ पे एक भी गलती होगी पूरा का पूरा सम गलत हो जाएगा। एंड दूसरे कॉलमन आर आई माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा आई, ये कॉलमन हमें लेना है। ये ऊपर जो दिया है वही लिख लेना है, लेकिन अरेंज करके लिखना है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी ए के लिए, फिर सिक्योरिटी एफ, फिर बी के लिए है 4.6667, फिर है 4, देन 3.75 एंड 3। ये जो कॉलमन है यही कॉलमन हमें यहाँ पे लिख लेना है, लेकिन अरेंज करके, यानी कि पहले सिक्योरिटी ए तो 10, उसके बाद सिक्योरिटी एफ 6, बी एंड सो ऑन। अब हमारा नेक्स्ट कॉलमन है आर आई माइनस आर एफ डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर इंटू बीटा आई। आर आई माइनस आर एफ डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर इंटू बीटा आई। अब हमें इस टेबल के ये 3 कॉलम्स के काम पड़ेंगे, बराबर। हम उसका कैलकुलेशन करेंगे, पर याद रखना है हमें जो ऑर्डर यहाँ पे अरेंज किया है उसी ऑर्डर में फॉलो करना है। सबसे पहले सिक्योरिटी ए के लिए आर आई माइनस आर एफ 10 डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर, ये ई आई स्क्वायर, तो 10 डिवाइड बाई 30 इंटू बीटा आई 1 इंटू 1। सो विल गेट आंसर 0.33333। हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं है, तो वी विल राइट 0.3333। वंस अगेन आर आई माइनस आर एफ डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर इंटू बीटा आई। अब आर आई माइनस आर एफ है हमारे पास 10 डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर है 30 डिवाइड बाई 30 इंटू बीटा आई 1। अब हम सारी चीज़ें सिक्योरिटी ए की ले रहे हैं अभी 0.3333। सेकेंड सिक्योरिटी एफ है, ये लिस्ट में एफ है, तो हम एफ की सारी चीज़ें लेंगे 9 डिवाइड बाई 10 इंटू 1.5, तो हमारा आंसर आएगा 1.35। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ पे 2 0 लगा दोगे तो भी चलेगा, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। नेक्स्ट है बी के लिए ये रहा सिक्योरिटी बी 7 डिवाइड बाई 20 इंटू 1.5, तो आंसर आएगा 0.525। एग्जैक्ट 3 फिगर्स आ रहे हैं तो हमें उतना लेके छोड़ देना है, एंड सो ऑन बाकी सब के लिए। नेक्स्ट का आंसर आएगा 0.20, देन 0.24 और नेक्स्ट का आंसर होगा 0.3। आप चाहो तो यहाँ पे 4 डिजिट करने के लिए जीरोज लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कॉलमन है सिग्मा आर आई माइनस आर एफ डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर इंटू बीटा आई। Now this column is nothing but the cumulative of this column। ये कॉलमन का cumulative है, तो cumulative के लिए तो पहली अमाउंट सेम टू सेम लिखी जाएगी 0.3333 प्लस इसके अंदर ये ऐड कर देना है 1.3500 प्लस 1.3500, तो आंसर आएगा 1.6833। इसी तरह से सारी अमाउंट्स को आपको ऐड करते जाना है। नेक्स्ट आंसर आएगा 2.2083,
then 2.4083, then 2.6483 and 2.9483। ये पूरी कॉलम का आंसर होगा। आप इसको पॉज करके वीडियो को आगे का कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो एंड लेटर ऑन वेरीफाई कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा और उतना जल्दी आंसर कर पाओगे। यहाँ पे स्पीड का भी इम्पोर्टेंस है। ऐसा ना हो जाए कि 14 मार्क्स का सम करने के लिए आपसे 1 से 1.5 घंटे चले जाए और फिर भी आपका आंसर ना आए। इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। एनीवेज, नेक्स्ट कॉलम है बीटा आई स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर। अब हमारे पास बीटा आई का स्क्वायर है नहीं, अभी हमें ये दो कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी। अभी इसका कोई काम नहीं है राइट नाउ। बीटा आई स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर, हमारे पास बीटा आई का स्क्वायर तो नहीं है, बट हम जो बीटा की कॉलमन है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले सिक्योरिटी का ए का बीटा है 1, तो 1 इंटू 1, तो हमारे पास हो गया 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 30, तो आंसर आएगा 0.0333। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं, रिमेंबर दिस थिंग। देन सिक्योरिटी एफ का बीटा है 1.5, तो 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 10 करना है, तो 2.25 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आएगा 0.225। नेक्स्ट है सिक्योरिटी बी का भी बीटा 1.5 है, तो 1.5 इंटू 1.5, तो हमारा आंसर आएगा 2.25 डिवाइड बाय 20, तो हमारा आंसर होगा 0.1125। इसी तरह से आपको बाकी के सारे कैलकुलेशन कर लेने हैं। 0.05, 0.064 एंड 0.1 और 10। आप चाहो तो कॉमन करने के लिए सब में पीछे 0 लगा सकते हो। नेक्स्ट कॉलम सिग्मा बीटा आई स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर, समेशन सेम 0.0333, 0.2583। किस तरह से आया आंसर? 0.0333 प्लस 0.2250, तो आंसर आएगा 0.2583। अब इसमें इस अमाउंट को ऐड कर देना है प्लस 0.1125, तो आंसर आएगा 0.3708। ऐसे ऐड करते जाना है 0.4208, 0.4848, 0.5848। हमने यहाँ पे 4 डिजिट्स लिए हैं। अब इसलिए देखो यहाँ पे हमारे पास जगह भी कम है, तो व्हाट विल डू, वी विल मेक C स्टार कॉलमन इन नेक्स्ट पेज, इन नेक्स्ट कॉलमन। आप ऐसे बना सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि इसी टेबल के अंदर बनाना है, राइट। सो नेक्स्ट कॉलमन अवर इज C स्टार कैलकुलेट करने के लिए आपको C स्टार के लिए यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं सिक्योरिटीज लिख लेता हूँ, A, F, B, E, D एंड C। अभी C स्टार कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला है, C स्टार का फॉर्मूला है C स्टार इज इक्वल टू सिग्मा m स्क्वायर इंटू सिग्मा RI माइनस RF डिवाइड बाई बीटा EI स्क्वायर इंटू बीटा I डिवाइड बाई 1 प्लस इंटू ब्रैकेट सिग्मा m स्क्वायर इंटू सिग्मा बीटा I स्क्वायर डिवाइड बाई EI स्क्वायर। ये हमारा जो है वो कॉलमन नंबर 4 है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये एग्जाम में इस तरह से नहीं लिखना है। एंड कॉलमन नंबर 6 है, तो हम उसके डेटास को लिखते जाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी ए सिग्मा m स्क्वायर दैट इज मार्केट वेरिएंस हमें दिया है, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, इट इज 10%, तो विल राइट 10। देन सबसे पहले सिक्योरिटी ए के लिए 0.3333 10 इंटू 0.3333। ये ध्यान रखना, इस तरह से अगर साइन में मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर कभी नहीं मिलेगा। एंड
1 प्लस 10 इंटू सिग्मा बीटा आई स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई स्क्वायर 0.0333। अब इसका समय टोटल करते हैं, सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 10 इंटू 0.3333 तो आंसर आएगा 3.333 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 इंटू 0.0333 आंसर आएगा 0.333 इज इक्वल टू 3.333। 1 प्लस 0.333 तो आंसर आएगा 1.333। 3.333 डिवाइड बाय 1.333 तो हमारा आंसर आएगा 2.5003 है, उसका हो जाएगा 4। हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं। सो सिक्योरिटी ए के लिए आएगा 2.5004। सिक्योरिटी ए के लिए सी स्टार आएगा 2.504। अब हम सिक्योरिटी एफ के लिए करेंगे 10 इंटू सिक्योरिटी एफ 1.6833 1.6833 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 इंटू 0.2583 0.2583। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 1.6833 तो आंसर आएगा 16.833 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 इंटू 0.2583 तो आंसर आएगा 2.583 प्लस 1 तो हो जाएगा 3.583। 16.833 डिवाइड बाय 3.583। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16.833 डिवाइड बाय 3.583 तो आपका आंसर होगा 4.6980। 4.6980। सी स्टार को थोड़े टाइम के लिए पोर्टफोलियो रिटर्न समझ लेते हैं। इफ अगर मैं सिक्योरिटी ए में इन्वेस्ट करता हूं तो माय रिटर्न इज 2.5004। अब अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी एफ को इंक्लूड करता हूं तो मेरा कट ऑफ रेट बढ़ रहा है, 2 से 4 हो गया। इट मीन्स सिक्योरिटी एफ को ऐड करना एडवाइजेबल है। तो अब आगे हमें बी का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन तब तक चालू रहेगा जब तक सी स्टार की वैल्यू कम ना हो जाए। इवन स्लाइट डिक्रीज होगा तो भी हमें वहां पे रोक देना है। तो चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं सिक्योरिटी बी के लिए। 10 इंटू सिक्योरिटी बी 2.2083 2.2083 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 इंटू सिक्योरिटी बी के लिए 0.3708 0.3708। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 2.2083 तो आंसर आएगा 22.083 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 इंटू 0.3708 तो आंसर आएगा 3.708 प्लस 1 तो आंसर आएगा 4.708। अब इसको सॉल्व करते हैं। 22.083 डिवाइड बाय 4.708 तो आंसर आएगा 4.6905।
नाउ सम के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि ये सम करके हमें पता चल जाएगा कि पॉइंट के बाद के डिजिट्स का इंपॉर्टेंस कितना है। लुक एट हियर, सिक्योरिटी 1 इंक्लूड हो गई। पहले ये अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं 4.6905। फर्स्ट सिक्योरिटी तो बाय डिफॉल्ट आएगी। सेकंड सिक्योरिटी 4.6980 वो भी हमने ऐड कर दिया। और अब देखो 6905। नाउ इन केस अगर आपने पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिए होते ना तो सिक्योरिटी बी और सी का सेम आता, सिक्योरिटी एफ एंड बी का, तो आपको सिक्योरिटी बी भी इंक्लूड करनी पड़ती, क्योंकि ये घट तो रहा नहीं है, सेम रहा, वो घटा नहीं कहा जाता है। अगर सेम आंसर आए तो भी आपको सिक्योरिटी को ऐड करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी एफ इंक्लूड हो जाती, जबकि एक्चुअली में ये रॉन्ग है। और जब आप इसका वेटेज निकालोगे ना, तो अगर आपने 2 डिजिट लिए और फिर उसका वेटेज निकालोगे ना तो वेटेज माइनस में आएगा। आप ये चाहो तो ट्राई कर सकते हो, यही सम पूरा है ना, 2 डिजिट लेके करना। तो आपका आंसर सिक्योरिटी 3 सिक्योरिटीज आएगी पोर्टफोलियो में और तीसरे का वेटेज माइनस में चला जाएगा। एक्चुअली कोई भी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव नहीं होता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने थे। ये बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शनल डिफरेंस है। देखो 4.6980 और यहाँ पे 6905, तो एक्चुअली देखने जाओ ना तो 0.0075 इतने पॉइंट का ही डिफरेंस आया है, 0.0075। पर ये भी स्मॉल फ्रैक्शनल डिफरेंस है। अल्टीमेटली यहाँ पे घट गया है सिक्योरिटी बी में, तो हम सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड करेंगे और रिमेनिंग कोई इंक्लूड नहीं करेंगे। आप बाकी के कैलकुलेशन खुद से कर लेना वीडियो पॉज करके। अब हमारा नेक्स्ट काम है, हमें इसका वेटेज कैलकुलेट करना है। वेटेज के लिए XI इज इक्वल टू ZI डिवाइड बाई सिग्मा ZI। ZI कैलकुलेट तो हमें अब सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी का करना है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 सिक्योरिटी इंक्लूडेड है। तो लेट अस कैलकुलेट ZI इज इक्वल टू बीटा I डिवाइड बाई EI स्क्वायर इंटू ब्रैकेट RI माइनस RF डिवाइड बाई बीटा I माइनस C स्टार। C स्टार हम कौन सा लेंगे? तो हमें इसको C स्टार कह देना है। दिस विल बी द कट ऑफ रेट। हम ऑलवेज 4.6980 एज अ कट ऑफ रेट ले लेंगे। अब ZI सबसे पहले सिक्योरिटी A के लिए कैलकुलेट करते हैं। सिक्योरिटी A के लिए हमें सिक्योरिटी A का बीटा चाहिए। सिक्योरिटी A का बीटा है 1 और उसका EI स्क्वायर है 30, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 30, राइट। अब नेक्स्ट RI माइनस RF डिवाइड बाई बीटा, ये हमारे पास है पूरा कॉलम जो हमने इसको अरेंज करके लिखा है, हमें ये ले लेना है। RI माइनस RF डिवाइड बाई बीटा I है 10 माइनस हमारा C स्टार कट ऑफ रेट है 4.6980, तो हमें यही ले लेना है 4.6980। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 डिवाइड बाई 30, तो आंसर आएगा 0.0333। पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही लेने हैं अभी भी, याद रखना। इंटू ब्रैकेट 10 माइनस 4.6980, तो आंसर आएगा 5.302। 5.302 इंटू 0.0333, तो हमारा आंसर आएगा 0.1766 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट रखने हैं। ये हमारा ZI मिला फॉर सिक्योरिटी A। इसी तरह से अब हमें दूसरी सिक्योरिटी F के लिए फाइंड करना है। F के लिए बीटा और EI स्क्वायर देख लेते हैं। सिक्योरिटी F का बीटा है 1.5, उसका EI स्क्वायर है 10, 1.5 डिवाइड बाई 10, RI माइनस RF डिवाइड बाई बीटा I, तो कॉलम है पूरा हमारे पास, ये रहा RI माइनस RF डिवाइड बाई बीटा I। 6 हम ले लेंगे
और सी स्टार की वैल्यू तो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, तो हमने जो लिया है वही उसको हम कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1.5 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आएगा 0.15 इंटू ब्रैकेट 6 माइनस 4.6980, तो आंसर आएगा 1.302 इंटू 0.15, तो आंसर आएगा 0.1953। ये ZI मिल गया हमें F का। अब हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 ही सिक्योरिटी है, तो हमें ये 2 ही सिक्योरिटी लेनी है। अभी हमारे पास दोनों का ZI है, सिग्मा ZI के लिए हम इन दोनों का समेशन कर लेंगे। 0.1766 प्लस 0.1953, 0.1766 प्लस 0.1953, तो हमारा आंसर आएगा 0.3719। ये हमें सिग्मा ZI मिल गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज है, दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं और हमें वेटेज मिल जाएगा। XI इज इक्वल टू ZI डिवाइड बाई सिग्मा ZI। अब हमें A के लिए फाइंड करना है। A का ZI है 0.1766 और उसका सिग्मा ZI 0.3719। 0.1766 डिवाइड बाई 0.3719, तो हमारा आंसर आएगा 4749 आंसर आएगा। इसी को हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 47.49%। आप F का कैलकुलेट नहीं भी करो ना तो भी आंसर आ ही जाएगा। आपका आंसर आएगा 52.51%, क्योंकि 2 ही सिक्योरिटी है, दोनों का वेटेज 100 ही होता है टोटल, तो ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। F का ZI की वैल्यू है 0.1953, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.1953 डिवाइड बाय 0.3719, 0.1953 डिवाइड बाय 0.3719, तो हमारा आंसर आएगा 0.5251। 4 से निकाल देना है, इसी को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। 52.51%। एक बार दोनों के परसेंटेज चेक कर लो, ये 100 ही होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट लास्ट वाले में कर लेना है। दोनों का टोटल हो गया 100। इट मीन्स नाउ इन सिक्योरिटी A 47.49% and security F 52.51% need to be invest. By this way we can construct optimum portfolio. So that is all about today. ये वीडियो को आप 2-3 बार देखना, पॉज करके सारा कैलकुलेशन खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। जितना आप ज़्यादा खुद से करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, चलो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।